یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی جسے بیٹیاں بالکل پسند نہیں تھیں، مگر اسے 3 بیٹیاں نصیب ہو گئیں۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک دیکھیں۔ ایک طاقتور بادشاہ کی ایک وسیع سلطنت تھی جس کی سرحدیں پہاڑوں، دریاؤں اور جنگلوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ لوگ بادشاہ کی قوت اور فیصلوں کی وجہ سے اس کی سلطنت کو خوشحال سمجھتے تھے۔ ایک دن سلطنت میں بڑی خوشی کی خبر پھیلی۔ بادشاہ کی بیوی حاملہ تھی۔ پورے محل اور سلطنت میں جشن منایا گیا۔ محل کی گلیاں رنگین جھنڈیوں اور روشنیوں سے سجی ہوئی تھیں۔ بازاروں میں خوشی کی گونج تھی اور ہر طرف چراغ جل رہے تھے۔ یہ خبر خاص طور پر دلچسپ تھی کیونکہ یہ بادشاہ کا پہلا بچہ ہونے والا تھا۔ ہر کوئی اس دن کا انتظار کر رہا تھا اور محل کے ملازمین، درباری اور عوام سب یہ سوچ رہے تھے کہ بادشاہ کی زندگی میں آنے والا یہ نیا جانا سلطنت کی تقدیر بدل دے گا۔ بادشاہ نے اس خوشی کے موقع پر ایک بڑی دعوت رکھی۔ اس میں پورے سلطنت کے لوگ مدعو تھے۔ محل کے صحن میں روشنی اور سجاوٹ تھی۔ سب لوگ خوش تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ کھانے کے لیے چاندی کے برتن لگے تھے اور مزیدار کھانے رکھے گئے تھے۔ محل میں میوزک اور گانے بھی چل رہے تھے۔ بادشاہ نے یہ دعوت سلطنت کے لوگوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے دی تھی۔ سب لوگ بادشاہ کی خوشی دیکھ کر خوش تھے اور بادشاہ کی سب سے بڑی خوشی ملکہ اور آنے والے بچے کی طرف تھی۔ بادشاہ دل میں بیٹے کا خواہش مند تھا۔ وقت گزرتا گیا اور آخر وہ دن آ گیا جب محل میں شہنائیاں گونجنے لگیں۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ ملکہ شمائلہ نے ایک چاند جیسی بیٹی کو جنم دیا۔ اس کے کالے بال اور روشن رنگ سب کو بہت بھا رہا تھا۔ بادشاہ نے بچی کو دیکھا تو دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے فوزیہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور پیار سے چوم لیا۔ محل میں جشن کا سما تھا۔ موسیقی کی دھنیں گونج رہی تھیں، چراغوں کی روشنی سے محل جگمگا رہا تھا اور ہر کوئی خوشی میں مست تھا۔ بادشاہ نے کہا، بیٹی بھی نعمت ہے۔ سب لوگ بادشاہ کی خوشی دیکھ کر خوش ہو گئے اور محل میں خوشیوں کا سما قائم ہو گیا۔ بادشاہ خوش تو تھا مگر وہ بیٹے کا طالب من تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کی سلطنت کے لیے وارث پیدا ہو جو اس کی بعد سلطنت سنبھالے اور اس کی نسل بڑھے۔ اس لیے اس کی خوشی کے ساتھ ساتھ دل میں ایک چھوٹا سا غصہ اور فکر بھی رہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، ایک دن کسی اور کے گھر آباد ہو جائیں گی، مگر سلطنت کے لیے وارث بیٹا ہونا ضروری ہے۔ بادشاہ نے پہلی بیٹی کا نام فوزیہ رکھا۔ فوزیہ بڑی ہونے لگی اور سب کی خوشیوں کا سبب بن گئی۔ جب وہ ہنستی تو فضا روشن ہو جاتی اور جب وہ روتی تو بارش ہونے لگتی۔ سب لوگ اس کی قدرتی خوبصورتی اور جادوئی اثر سے حیران رہ جاتے تھے۔ فوزیہ اتنی حسین تھی کہ جو بھی اداس شخص اس سے بات کرتا، اس کی اداسی اور تھکن فوراً دور ہو جاتی۔ اس کی مسکراہٹ سب کے دل خوش کر دیتی اور محل میں ہر کوئی اس کی باتوں اور ہنسی کا قائل ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ملکہ شمائلہ دوبارہ حاملہ ہوئی۔ محل میں سب نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن بادشاہ کے دل میں ایک چھوٹا سا خوف اور فکر رہ گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس بار بیٹا پیدا ہو اور سلطنت کا وارث بنے۔ ایک دن وزیر نے بادشاہ سے کہا، میں نے سنا ہے کہ جنگل میں ایک بزرگ حکیم ہے جو ایک خاص دوا دیتے ہیں جس سے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور فوراً فیصلہ کیا کہ وہ ضرور اس حکیم کے پاس جائے گا۔ بادشاہ جنگل گیا اور حکیم سے دوا حاصل کی۔ واپس آ کر اس نے دوا ملکہ شمائلہ کو دی اور کہا، اسے کھاؤ، یہ تمہارے بچے کو صحت مند بنا دے گی۔ ملکہ نے بادشاہ کی بات مانی اور دوا کو باقاعدگی سے کھایا۔ وقت گزرا اور بچے کی ولادت کا دن قریب آیا۔ بادشاہ کو یقین تھا کہ اس بار بیٹا پیدا ہوگا اور وارث بنے گا، مگر جب بچی پیدا ہوئی تو دل میں مایوسی رہ گئی۔
ये बेटी सितारे की तरह चमकदार थी और इसके चांदनी जैसे बाल देखकर सब लोग हैरान रह गए। महल में सब लोग बहुत खुश थे, मगर बादशाह अपने कमरे में उदास बैठा था। बादशाह को वजीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि वजीर ने झूठ बोला है। अगले दिन बादशाह ने दरबार में कहा, इस वजीर ने गद्दारी की है और दूसरी सल्तनत में हमारे राज बताए हैं। इसे फौरन फांसी दी जाए। दरबार के सब लोग खौफजदा हो गए और खामोशी छा गई। हर किसी के चेहरे पर हैरत और दहशत नजर आ रही थी। वक्त गुजरता गया और रुखसार भी बड़ी होने लगी। बादशाह अब अपनी दोनों बेटियों से दूर रहने लगा। अगर वो दरबार में जाती तो बादशाह उन्हें डांट देता और सख्त रवैया इख्तियार करता। बादशाह का रवैया मलिका शमाइला के साथ भी ठीक नहीं था। मलिका कोशिश करती, मगर बादशाह का दिल अब भी बेटे का तालिबमंद था। कुछ अरसे बाद मलिका शमाइला तीसरी बार हामला हुई। उसने मलिका से सख्त लहजे में कहा, अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हारी तीनों बेटियों को मार दूंगा और तुम्हें कैद खाने में डाल दूंगा। मुझे बेटा चाहिए, मुझे अपना वारिस चाहिए। मलिका ये सुनकर कांप उठी और दिल ही दिल में दुआ करने लगी। वक्त गुजरता गया और आखिर बच्चे की विलादत का दिन आ गया। महल में खामोशी और खौफ का सा माहौल था। बादशाह ने डॉक्टर को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, अगर बच्ची पैदा हो तो वहीं उसे मार देना। मुझे बेटा चाहिए, मुझे अपना वारिस चाहिए। डॉक्टर ये सुनकर घबरा गई, मगर बादशाह के खौफ से कुछ बोल ना सकी। वक्त गुजरा और बच्ची पैदा हुई। डॉक्टर ने जैसे ही बच्ची को देखा वो उसे मार ना सकी, क्योंकि बच्ची बहुत हसीन और नाजुक थी। मलिका ने डॉक्टर से कहा, अगर बादशाह को पता चला तो वो बच्ची को मार देगा। तुम बादशाह को ये ना बताना कि बच्ची जिंदा है। तुम्हें कहना होगा कि बेटी पैदा हुई थी और तुमने उसे मार दिया। बादशाह को हकीकत ना पता चली और बच्ची खुफिया तौर पर महफूज हो गई। मलिका ने अपनी भरोसेमंद मुलाजमा को चुपके से बुलाया। मलिका की आंखों में आंसू थे और आवाज़ कांप रही थी। मलिका ने कहा, इस बच्ची को मुलाजिम खाने में ले जाओ और इसका पूरा ख्याल रखना। मैं जब भी मौका मिला चुपके से आकर अपनी प्यारी बेटी ईमान से मिलने आऊंगी। मुलाजमा ने सर हिलाकर वादा किया और बच्ची को आहिस्ता से उठाकर ले गई। महल में किसी को खबर ना हुई कि शहजादी ईमान अभी जिंदा थी। शहजादी ईमान ने मुलाजिम खाने में अपनी जिंदगी शुरू की। वो छोटी थी, मगर उसकी आंखों में रोशनी और मुस्कुराहट सबके दिल जीत लेती थी। मलिका शमाइला रोजाना आकर ईमान से मिलती, उसके साथ खेलती, बातें करती और उसे गोद में उठाकर प्यार करती। मलिका हमेशा कहती, तुम इस कमरे से कभी बाहर मत जाना, बाहर बहुत खतरा है, यहाँ तुम महफूज हो। वक्त गुजरता गया और शहजादी ईमान ने अपनी ज़िंदगी के 16 साल इस कमरे में गुजारे। वो अब बड़ी हो गई थी और सूरज की तरह चमकदार और रोशन लगती थी। उसके सुनहरे बाल सूरज की रोशनी की तरह चमकते थे और उसके चेहरे की खूबसूरती देखकर सब लोग हैरान रह जाते थे। ईमान में एक ख़ास खूबी भी थी। जो चीज़ भी वो छूती और उसकी तारीफ करती वो सोने की बन जाती। चाहे फूल हो, कपड़ा हो या कोई छोटा सा खिलौना, ईमान की छू जाने से सब चमकदार सोना बन जाता। ये ताकत इतनी निराली और जादुई थी कि मुलाजमा और मलिका दोनों इसकी देखभाल में मजीद मोहतात रहती थीं, क्योंकि ईमान की ताकत अगर बाहर चली जाए तो ख़तरनाक हो सकती थी। ईमान के कमरे में एक खिड़की थी जिससे वो बाहर की दुनिया देख सकती थी। एक दिन उसने बाहर देखा और अपनी 2 बड़ी बहनें शहजादी फौजिया और शहजादी रुखसार को देखा। ईमान ने हैरानी से पूछा, ये कौन है? मुलाजमा ने आहिस्ता से जवाब दिया, ये आपकी बहनें हैं शहजादी ईमान। ईमान ने थोड़ा गुस्से और उदासी से कहा, मेरी बहनें मुझसे क्यों नहीं मिलती? क्या उन्हें बाहर जाने का खतरा नहीं? मुझे उनके पास जाना है। मुलाजमा ने समझाया, बेटी बाहर बहुत खतरा है, इसीलिए आपकी बहनें और किसी को आपके पास आने की इजाज़त नहीं है। ईमान दिल ही दिल में सोचने लगी कि वो एक दिन ज़रूर अपनी बहनों से मुलाकात करेगी और सब कुछ जानेगी। शहजादी ईमान हमेशा बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। खिड़की से वो बाहर के बागात, महल के लोग और अपनी बहनें देखती और दिल चाहता कि वो भी बाहर जाकर खेले और दुनिया को जाने, मगर मलिका शमाइला ने मना किया हुआ था। ईमान दिल ही दिल में उदास हो जाती, मगर जानती थी कि मलिका उसकी हिफाजत के लिए ऐसा कर रही है। कई साल बाद सल्तनत में कहत आ गया, खजाना खाली हो गया और महल में हर तरफ फिक्र छा गई। बादशाह परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि सल्तनत कैसे संभाली जाए और लोगों की मदद कैसे की जाए। खेतों में फसल खत्म हो गई और अनाज भी कम पड़ गया। लोग परेशान और भूखे रहने लगे। जंगल में अब कहत का असर आ गया था। हर दरख्त खुश्क हो गया और सब हरियाली खत्म हो गई थी। जंगल के जानवर भूखे रहने लगे और शिकार भी कम हो गया। सल्तनत में खजाना खत्म हो चुका था। बादशाह परेशान और फिक्रमंद था कि अब सल्तनत कैसे संभाली जाए। मलिका शमाइला कुछ सुनहरी अशिया लेकर बादशाह के पास गईं और कहने लगी,
ये आपके काम आएंगी, आप इन्हें रख लें। बादशाह ने अशिया को देखा तो हैरान रह गया। ये सोना इतना ज़्यादा था कि वो मलका से बोला, तुम्हारे पास इतनी कीमती चीज़ें कहाँ से आईं? मलका ने जवाब दिया, ये मैंने संभाल कर रखी थीं। बादशाह ने हैरत से कहा, ऐसी चीज़ें तो मैंने तुम्हें कभी नहीं दी और ना ही ये हमारे शाही खजाने में मौजूद हैं। मलका ने धीरे से कहा, मैं आपको सच बताऊंगी, मगर आप वादा करें कि मेरी बेटी ईमान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और ना उसका कत्ल किया जाएगा। बादशाह ने सर हिलाकर कहा, मैं वादा करता हूँ, बताओ ये सब कहाँ से आया? मलका ने बादशाह को बताया, ये मेरी तीसरी बेटी ईमान की वजह से है। जो भी चीज़ उसके हाथ लगती और वो उसकी तारीफ करती है वो सुनहरी बन जाती है। ये वही बेटी है जिसे आपने पहले कत्ल करने का कहा था। बादशाह ये बात सुनकर हैरान और परेशान रह गया। ये बात बताने के बाद मलका शमाइला ने फ़ौरन अपनी भरोसेमंद मुलाजिमा को बुलाया। मलका ने हुक्म दिया, जाकर शहजादी ईमान को फ़ौरन यहाँ ले आओ। मुलाजिमा ने सर झुकाकर हुक्म माना और तेज़ी से मुलाजिम खाने की तरफ रवाना हो गई। महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई और बादशाह दिल ही दिल में सोचने लगा। जब शहजादी ईमान को पता चला कि उसे महल में लाया जा रहा है, वो दिल ही दिल में बहुत खुश हुई और पुरजोश हो गई। जैसे ही वो महल पहुंची और बादशाह ने अपनी बेटी को देखा, वो हैरान रह गया। दिल की सख्ती टूट गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने फ़ौरन शहजादी ईमान को गले से लगाया और कहा, मेरी बेटी, माफ़ कर दो मुझे। बादशाह दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि उसने अपनी बेटी को पहले नुकसान पहुंचाने का सोचा था। शहजादी फौजिया और रुखसार भी वहाँ थी। उन्होंने अपनी छोटी बहन को देखा और दिल ही दिल में बहुत खुश हुई। सबकी खुशी और रिश्तेदारी दोबारा जुड़ गई और महल में मोहब्बत और सुकून की फ़िज़ा छा गई। शहजादी ईमान की सुनहरी ताकत की वजह से बादशाह ने दोबारा सल्तनत का ख़जाना भर लिया। इस सोने को इस्तेमाल करके बादशाह ने दूसरी सल्तनत से अनाज खरीदा और फसल उगाने के लिए ज़रूरी चीज़ें भी खरीदी। इस तरह ना सिर्फ लोग भूखे से बच गए, बल्कि खेतों में दोबारा सब्ज़ा और फसलें उगने लगीं। ईमान की जादुई ताकत और बादशाह की हिकमत से सल्तनत फिर से खुशहाल हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी औलाद में फ़र्क नहीं करना चाहिए। चाहे बेटा हो या बेटी, सब नेमत हैं और सबकी अपनी अहमियत है। हमें अपने बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए और किसी को कमतर या ज़्यादा अजीज़ नहीं समझना चाहिए। सब्र, हौसला और मोहब्बत हमेशा खुशी और कामयाबी का सबब बनते हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मज़ीद दिलचस्प और सबक आमूज़ कहानियाँ बनाने का हौसला मिलता है। जल्द ही हम एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे, जहाँ आपको मज़ा, सबक और जादुई दुनिया का लुत्फ़ दोबारा मिलेगा।